आग्नेय पुराणंतर्गत आम उत्कल राज्यर एक पारंपरिक व्रत पुष रविवार व्रत कथा। स्थित पदमोपरिं रविं तेजोबिम्बे व्यवस्थितां पिङ्गाक्षं द्विभुजं रक्तं पददण्डारुणानियुतं सर्वलक्षण संयुक्तं सर्वाभरणभूषितम् अभयं वरदं शान्तं प्रभामण्डलमिश्रितम् तदन्तं भास्करं ध्यात्वा चन्द्रमिन्दुरसन्निभम् ततस्तत्र पात्रमादाय जानुभ्यां धरणी तले कृत्वा शिरसि तत्पात्रमेकचित्तस्तु बाक्यतः। रविवार दिन सूर्य पूजा मनासीण व्रत कले लक्ष्मी देवी हरस होइण सेहि दिन पुत्र काम्यपति व्रता नारी रविवार दिन व्रत करन्ति बेचारी सेहि दिन पुत्र काम्यपति व्रता नारी रविवार दिन व्रत करन्ति बेचारी रविवार दिन व्रत करन्ति बेचारी। धर्म निरंजन देव चरणे नमयि धर्म निरंजन देव चरणे नमयि पुष रविवार कथा कहि आरंभई शुण जने मोर हटा देशर राजन सुगति नामरे थिले अति पुण्यवान सुशीला नामरे थिले तांक महादेई पतिव्रता धर्मशीला तांक परिसेहि राजा पुत्र समान रे प्रजांको पालन्ति देवगुरु ब्राह्मण रे करन्ति भक्ति सेहि पुण्य राजांकर एकई कुमार होइले जे रूप गुणे नाही पटांतर सुंदर पणरे काम तागरे छार दिनो दिन पाठ पढ़ी हेला गुणाकार से सुतर नाम रत्ना कर जे अटई सकल गुणरे ताकु समानटी सेहि से पुत्रर यौवन समय हुअन्ते महिमा करहि बोले संगीक संगते दिने संगी मानंकर संगे रत्नाकर बसी अछि सेहि पथे आगरे ताहार एक महाजन पुत्र विवाह होई करी कन्या घेनी जीवारुता अनाई विचारी अपना गृह को जाई से राजनंदन जननी निकटे कहे वीर शेषन
আগো মাত ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଯେତେ ସଙ୍ଗୀ ଛନ୍ତି, ସକାଳେ ହୋଇଲେ ବିଭା ଖୋଜି ଯେ ଝାଜାତି। କାହିଁ ପାଇଁ ବୋତେ ବିଭା ନ କରି ଗୋ ମାତ, ଏହା କହି ରତ୍ନାକର ହୁଅନ୍ତେ ଦୁଃଖିତ। ପୁତ୍ରର ବଚନ ଶୁଣି ସୁଶୀଳା କହି, କରିବୁ ବିଭା ଯେ ତୋତେ ନ ଭାଳରେ ତୁହି। ଏହା କହି ମହାଦେଇ ନୃପ ପାଶେ ଯାଇ, ବୋଇଲେ ହେ ରାଜା ଶୁଣ ଯାହା ମୁଁ କହି। ହୋଇଲା ନନ୍ଦନ ଯୁବା ତାହାକୁ ବିବାହ, ନକର କିମ୍ପାଇଁ ଏଥେ ମରମ କି କହ। ରାଣୀ ବଚନରେ ରାଜା ଚମକି ପଡ଼ିଲା, ମୋ ମନେ ତାହା ନାହିଁ ବୋଲି ରାଣୀ କି କହିଲା। ଆଉ କିଛି ନ କହ ଗୋ ଅଳପ ଦିନରେ, କରାଇବି ବିଭା କନ୍ୟା ଖୋଜି ଝଟତିରେ। ରାଣୀ ତାହା ଶୁଣି ଅନ୍ତଃପୁରକୁ ଚଳିଲା, ରାଜା ତହୁଁ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଡକାଇଲା। ନିକଟେ ବସାଇ ତାଙ୍କୁ ବୋଲେ ଗୋସାଇଁ, କନ୍ୟା ଏକ ବୁଝ ଆମ ଯୁବରାଜ ପାଇଁ। କନ୍ୟା ଏକ ବୁଝ ଆମ ଯୁବରାଜ ପାଇଁ। ରାଜା ବଚନରେ ସର୍ବ ହେଉ ବୋଲି କହି, ରାଜ ପୌରୁଷ ଘେନି ଗଲା ବେଗ ହୋଇ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବୋଲି କର୍ଣ୍ଣାଟ ଦେଶରେ, ମିଳିଲେ ସେ ଧନବନ୍ତ ସାଧବ ନବରେ। ବାଳାବତୀ ନାମେ ଥିଲା ସାଧବର ଝିଅ, ସର୍ବସୁଲକ୍ଷଣୀ ରୂପ ଗୁଣରେ ଅକ। ତାହା ଜାଣି ବିପ୍ର ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ଆମ ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଛଇ ବୋଇଲେ। ସେ ରାଜା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେ କନ୍ୟା ଦାନ କର, ବୁଝିଲେ ତାହାକୁ ହେବ ନାହିଁ ଅସୁନ୍ଦର। ଶୁଣି ତା ସାଧବ ଯହୁଁ ସନମତି ହେଲା, ଗଣ ପୋଛା କରି ବିପ୍ର ସେଠାରୁ ଚଳିଲା। ସୁଗତି ନୃପତି ପାଶେ ମିଳି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସବୁ କଥା ତାଙ୍କ ଆଗେ କରନ୍ତେ ବଖାଣ। ଶୁଣି ତାହା ନରପତି ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲା, ଗହଣ ଲଗାଇ ପୁତ୍ର ଘେନି ଚଳିଗଲା। କେତେ ଦିନେ ଯାଇ ମିଳେ କର୍ଣ୍ଣାଟ ଦେଶରେ, ପରବେଶ ହୁଅନ୍ତେ ଯେ ସାଧବ ନବରେ। ଦେଖି ତାହା ଧନବନ୍ତ ସାଧବ ତୋଷରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ରଖାଇଲେ ଉତ୍ତମ ବାସରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ରଖାଇଲେ ଉତ୍ତମ ବାସରେ। ଶୁଭ ଯୋଗ ଲଗ୍ନ ଦେଖି କଲା କନ୍ୟା ଦାନ, ଯାହା ଯୌତୁକ ଦେଲା ନୁହଇ ଗଣନ। ବିଭା ସାରି ସର୍ବେ ତହିଁ ସେ ନିଶି ରହିଲେ, ପରଦିନ ବର କନ୍ୟା ଘେନିଲେ ଉଠିଲେ। ସାଧବ ଅନେକ ଧନ ଭାର ସକଟରେ, ଝିଅ ସଙ୍ଗେ ଦେଲା ଅତି ଆନନ୍ଦ ମନରେ। ରାଜପୁର ନିକଟରୁ କିଛି ଦୂର ଥାଇ, ହାନ୍ଦୋଳାରୁ ସାଧବର ଝିଅ ଦେଖେ ଚାହିଁ। ରବି ଅସ୍ତ ହେବାରୁ ଦିନଳ୍ପ ଛଇ, ଏଥି ଦେଖି ସାଧବର ଝିଅ ବିଚାରଇ।
ମୋ ବାପ ସାଧବ ଦେଇ ଅଛି ଯେତେ ଭାର, କିଏ ତା ଦେଖିବ ବା ହୋଇଲେ ଅନ୍ଧାର, ହୋଇଲେ ଅନ୍ଧାର। ଏହା ଭାବି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲା ଦୁହିତା, ବହୁ ବିନୟରେ ବୋଲେ ହେ ଦେବ ସବିତା, କୃପା ବହି କିଛି ବେଳ ସ୍ଥିର ଗତି କର, ଯେଉଁପରି ଅତି ଶୀଘ୍ର ନୋହିବ ଅନ୍ଧାର। ଆମ୍ଭେମାନେ ସର୍ବେ ଯାଇ ରାଜଭବନରେ ପରବେଶ ହୋଇ ବୁଟି ଯଥା ଦିବସରେ, ତହିଁ ପରେ ତୁମ୍ଭେ ଅସ୍ତାଚଳ ପଛେ ଯିବ, ଏ ମୋର ବିନୟ ଘେନ ଆହେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବ। ସାଧବ ଦୁହିତା ବିନୟରେ ଦିନକର, ବିଳମ୍ବ ଗତି କରନ୍ତେ ହୋଇଲା ଉଛୁର, ବିଳମ୍ବ ଗତି କରନ୍ତେ ହୋଇଲା ଉଛୁର। ରାଜଭବନରେ ସର୍ବେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ, ତହିଁ ପରେ ଦିନପତି ଅସ୍ତାଚଳେ ଗଲେ। ସେଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମାତା ପୁତ୍ରକୁ ଅନାଇ, ବିକଳେ ଭାଳୁଛେ ସୁତ ନଇଲା କେମ୍ପାଇ। କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଲା ମନରେ ବିଚାରି, ବାଟେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ପଥ ଚାହିଁ କରି। ଏହି କାଳେ ରବି ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୁଅନ୍ତେ, ତାଙ୍କୁ କୋଳେ ଧରି ମାତ ବୋଇଲେ ମନ୍ତେ। ଏହି କାଳେ ରବି ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୁଅନ୍ତେ, ତାଙ୍କୁ କୋଳେ ଧରି ମାତ ବୋଇଲେ ମନ୍ତେ। ଆରେ ବାବୁ ଆଜି ତୋର କାହିଁକି ଉଛୁର, ହୋଇଲା କେ ଅବା ପଥ ଜଗିଲା ତୋହର, ହୋଇଲା କେ ଅବା ପଥ ଜଗିଲା ତୋହର। ଯେ କେହି ହେଉ ବିଳମ୍ବ କଲା ଯେଟେ ତୋର, ମୋ ଅଭିଶାପରେ କୁଷ୍ଠ ହେଉ ଅଙ୍ଗେ ତାର। ଗଳିତ କୁଷ୍ଠେ ତା ହାତ ଗୋଡ଼ ଛିଡ଼ି ଯାଉ, ତୋ ପଥ ବିଳମ୍ବ କରିବାର ଫଳ ପାଉ। ଏହା ଶୁଣି ଆଦିତ୍ୟ ଯେ ବିରସ ହୋଇଲେ, କି କଲ ମାତ ବୋଲି ସେ ବୋଇଲେ, ବୋଲି ସେ ବୋଇଲେ। କି କଲ ମାତ ବୋଲି ସେ ବୋଇଲେ। କେହି ମୋର ପଥ ବନ୍ଦ କରି ନାହିଁ ଶୁଣ, ଯହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଲା ବୁଝ ତା କାରଣ, ଯହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଲା ବୁଝ ତା କାରଣ। ସାଧବର ଝିଅ ଆଜି ଘେନି ବୋଝ ଭାର, ଗହଣା ଲଗାଇ ଯାଉଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ଘର। ତାହା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୋର ବିଳମ୍ବ ହୋଇଲା, ଏଥିରୁ ବା କେଉଁ ଜଣ ଦୋଷକାରୀ ହେଲା, ଏଥିରୁ ବା କେଉଁ ଜଣ ଦୋଷକାରୀ ହେଲା। ଅକାରଣେ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲ ମାତ, ଏବେ କହ କିପରି ସେ ହୋଇବ ମୁକ୍ତ। ଆଦିତ୍ୟ ବଚନେ ତାଙ୍କ ଜନନୀ କହନ୍ତି, ପୁଷ ରବିବାର କଲେ ହେବ ସେ ମୁକ୍ତି। ପୁଷ ମାସ ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରଭାତରୁ, ରବି ଉଦେ ନହୁ ବେଗେ ଉଠିବ ସେ ଜରୁ। ବିଧାନରେ ଯାଇ ସ୍ନାନ କରି ଆସି ବେଗେ, ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଲିପି ଗୋମୟ ସରାଗେ। ତହିଁରେ ମଣ୍ଡଳ ଭାଙ୍ଗି ରବିଙ୍କୁ ସ୍ଥାପିବ,
नाना वर्ण फुले से स्थान को मंडाइब वेद मंत्र जानिथिबा ब्राह्मणे डकाई सूर्य पूजा कराइब नाना भोग देई शर्करा मिश्रित आउ ताजा पक्व फल अमिषा दधि गोटे आदि नारी केळ ए विधिरे नाना उपचार पूजा कले अवश्य होइब मंगलटी जान भले ଏହା କହି ମାତା ପୁତ୍ରେ ରହିଲେ ସନ୍ତୋଷେ ଶୁଣ ଜନେ ହେତୁଅନ୍ତେ କେତେକ ଦିବସେ ସାଧବ ଝିଅର ଅଙ୍ଗେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହେଲା ଦିନୁ ଦିନ ତାହାକୁ ବଶ କରିଦେଲା राजा रानी ताहा देखी दुखित होइले गुरु ब्राह्मण को डाकी सबु जणाइले तेसन सकल शुणी कहिले विचारी जेबे पुषर रविवार व्रत करि पारी तेबे जान तार ए रोग छाड़ी जीव आउ जहा को बांछिब अवश्य फलिब एहा बोली से व्रतर विधि बताइले सुनिता राजा रानी बधू को कहिले साधवर झियो शुणी भक्ति चित्तरे कला पुष रविवार व्रत को विधिरे कला पुष रविवार व्रत को विधिरे कला पुष रविवार व्रत को विधिरे तह दिनो दिन तार व्याधि केणे गला पुत्र धन पति सुखे सुहागी होइला आहे जने पुषर रविवार जे करई ताहार सकल वंशा अवश्य फलई सूर्य देव पूजा व्रत एटी जने शुण भक्ति रे कले होए वांछित पुराण भक्ति रे कले होए वांछित पुराण भक्ति रे कले होए वांछित पुराण एते पुष रविवार व्रत कथा संपूर्णम्। श्री सूर्य महाग्रहाय नमः। श्री सूर्य महाग्रहाय नमः। जवा कुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्युतिः धन्त्वारिं सर्वपापघ्नं
प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रसूते स्थितिनाशहे तवे त्रैमयाय त्रिगुणात्मधारिणे वीरञ्चि नारायणे शङ्करात्मने। एष अर्घ्य श्री सूर्याय नमः। एष अर्घ्य श्री सूर्याय नमः। एष अर्घ्य श्री सूर्यनारायणाय नमः। भास्वदरत्नात्यमौलिः स्फुरदधररुचा रञ्जितश्चारुकेशो भास्वानयो दिव्यतेजाः करकमलयुतः स्वर्णवर्णप्रभाभिः विश्वाकाश विकास ग्रहपति शिखरे भाति यश्चोदयार्द्रो सर्वानंद प्रदाता हरिहर नमितः पातु मां विश्वचक्षुः। सर्वानंद प्रदाता हरिहर नमितः पातु मां विश्वचक्षुः। पातु मां विश्वचक्षुः। अरुण सरोहा संस्थस्त्रिवृत्तारुणो अरुण सरोह जुगलधरः करकलिता भयवरो दोद्युतिनि भो अमित भूषणो धिये अर्कवर्णः जबा कुसुम संकाशं काश्यपेयं महादेवतीम् ध्वन्तारिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रसूते स्थितिनाशहे तवे त्रैमयाय त्रिगुणात्मधारिणे वीरञ्चि नारायणे शङ्करात्मने। ब्रह्मणे ॐ सूर्यनारायणाय नमो नमः। ॐ ब्रह्मणे सूर्यनारायणाय नमो नमः। ॐ ब्रह्मणे सूर्यनारायणाय नमो नमः। हरिः ॐ। पौष मासरे विष्णु रूपरे आदित्य को पूजा करी कृषरा अर्थात खेचुड़ी नैवेद्य देव एवं बीजपुर अर्थात टभा लेंबु रस अर्घ्य दे घृत प्राशन करी तहि उत्तारु ब्राह्मण भोजन कराइब। एठारे सूचाई देबाकु चाहुअछु जे जहा समस्त ज्ञात हेबा उचित पुष रविवार व्रत अनुष्ठान करुथिबा नारी पुरुष उभय बा परिवारर समस्ते बा जे केही कौनसी रविवार रे अदा मसूर पोड़ा द्रव्य आमिष महु गुड़ इत्यादि भक्षण करिबा निषेध। यह केवल पुष रविवार रे नुहे प्रत्येक रविवार रे पालनीय कर्तव्य। पौष मासरे कोलथ फल बा कोलथ डाली भक्षण करिबा निषेध। केते गुड़िए सेध खाद्य बा उचित खाद्य बा ग्रहणीय खाद्य जहाँकि पौष मासरे कदली फूल काईच पत्र दैनिक गोटे लेखाएं कमला निम्ब छाली गंठियना मूलर चूर्ण यही सब द्रव्य उपयुक्त परिमाण रे नियम एवं विधि अनुजाई सेवन करने उचित। यह स्वास्थ्य पक्षरे हितकारक होइथाय बोली वेद शास्त्र रे सिद्धांत करा जाय अछंती। पौष मास अमावास्या रे बकुल मिश्रित क्षीर पायस द्वारा पितृलोकों उद्देश्य तर्पण करा जाए। जो दिन को अमावास्यार श्राद्ध काल थिबो सही दिन केवल अनुष्ठान करने को ही पड़ो। जोपरी श्रावण अमावास्या बा चित्तलागी अमावास्या एवं भाद्र अमावास्या अर्थात सातपुरी अमावास्या एहीपरि करा जाइथाय। प्रथम केवल चितौ पिठादान एवं द्वितीय सातपुरी पिठादान यही दुईटी जाक अमावास्या यह ही विशेषत्व। देवालय मानकरे पितृकृत्यर अभाव तेणु पूर्वाहण दृष्टि यह निर्णय करा जाइथाय। पुत्रवान लोके पौष मास शुक्लपक्ष पंचमी रे
संतान मानकर हित और मंगल कामना करने उद्देश्य धर्म देवता को पूजा करती। एथिरे कर्मकाल कथित होई नाही, तेणु सूर्य उदय हेबा ठारू 3 मुहूर्त जाए यही पूजार निर्दिष्ट काल बा पूजा काल। यदि तिथि उभय दिन को पाइथिबो तेबे पूर्व कथित व्यवस्था अनुसार निर्णय करा जाई परिबो। एथिरे उपवास करा जाए नाही, तेणु पूर्ववेद एवं परवेदर कौनसी चिंता नहीं। पौष पूर्णिमा मनोहर घृतपक्व पुष्टिकारक द्रव्यमान खाइबा उचित। पुष्य नक्षत्र युक्त पूर्णिमा राजा बा शासक मानकर स्नान करा जिबा कर्तव्य। पूर्वाहण एहार कर्मकाल, कारण एही पूर्णिमा घृतपक्व खाद्य ग्रहणर व्यवस्था होइअछि। देवपूजा परे भोजन करा जाए। देवपूजा पूर्वाह्न अनुष्ठेय कर्म। तिथि द्वैध हेले साधारण विधान अनुसार कार्य कराजिबो, कारण ए विषय रे जोग हेउछि बलवान। तिथि एवं नक्षत्र भेद हेले राजा माने नक्षत्र जोगरे स्नान करिवे, कारण शास्त्रोक्त उक्ति अछि जे पुष्य नक्षत्र युक्त तिथि रे स्नान कराजिबा निश्चित कर्तव्य। उभय दिन सूर्योदय समय को नक्षत्र थिले पूर्व दिन को ग्रहण कराजिबो। सेपरि नथिले जेउ दिन सूर्योदय बेल को नक्षत्र रहिथिबो सेही दिन ही करिबो, कारण उदय काल रे नक्षत्र 3 मुहूर्त जाए थिले तहिरे व्रत एवं दान करा जाय थाए। 2 दिन एपरि थिले ताहा बलवत्तर हुए। एही विषय रे समस्ते ज्ञात होइथिबा आवश्यक। ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः। घृणी सूर्याय नमः। घृणी सूर्याय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः। तत्रास्ते भारतवर्षे दक्षिणोदधिसंश्रितः ओड्र देश इति ख्यात स्वर्गमोक्ष प्रदायकः। समुद्रादुद्भवं तावत् यावत् विरजामण्डलम् देशो असौ पुण्यशीलनं गुणैः सर्वैरलङ्कृतम्। तस्मिन् देशे प्रसूता ये ब्राह्मणा वेदपारगाः तपः स्वाध्याय निरता दृश्याः पूज्याश्च ते सदा। श्राद्धे दान विवाहे च यज्ञे वाचार्य कर्मणि प्रसक्ताः पूर्वकार्येषु तत्र देशोद्भवा द्विजा। षट्कर्मं निरतास्तत्र ब्राह्मणा वेदपारगाः इतिहास वेदश्चैव पुराणार्थ विशारदाः। सर्वशास्त्रार्थ कुशला यजानागतमश्चराः अग्निहोत्ररता केचित् केबिति स्मार्ताग्नि तत्पराः। पुत्रदार धनिर्युक्ता दातार सत्यवादिनः निवसन्ति उत्कले पुण्ये यज्ञोश्रव विभूषिते। इतरेऽपि त्रयो वर्णा क्षत्रियाद्यासु संजताः स्वकर्म निरता सक्ता संतिष्ठयन्ति धार्मिकाः। कोणादित्य इति ख्यात तस्मिन् देशे व्यवस्थितः यं दृष्ट्वा भास्करं मर्त्य सर्वपापैः प्रमुच्यते। मुनय ऊचुः श्रोतुमिच्छामहे ब्रूहि क्षेत्रं सूर्यस्य शाश्वतम्। तस्मिन् देशे संसबद्धे यात्रास्ते स दिवाकरः ब्रह्मोवाच। लवणस्योदधे स्थिरे पवित्रं सुमनोहरे सर्वत्र बालुका किरणे देशे सर्वगुणान्युते।
चंपका शोक बकुलैः करवीरैः सपाटलैः पुन्नागैः कर्णिकारैश्च शङ्कुलैः नागकेशरैः जबा तगर बाणैश्च अतिमुक्तैः सकुबुजकैः मालती कुन्दपुष्पैश्च तथा नैमल्लिकादिभिः केतकी घनशखैश्च सर्वत्र कुसुमेज्ज्वलैः बकुलेर लकुचै शाकै पणसै देवदारुरुभिः अश्वस्थै शतपत्रैश्च आम्रैश्च मातकैस्तथा तालै पुगफलैश्चैव नारिकेलै कपित्थकैः अनैश्च विविधैः वृक्षैः सर्वत्र समलङ्कृतैः क्षत्रं तत्र रवेः पुण्यमास्ते जगति विश्रुतम् समन्तादयोजनं साग्रं भुक्तिमुक्तिफलप्रदम् अस्ते तत्र स्वयं देव सहस्रांशुर्दिवाकरः कोणादित्य इति ख्यातो भक्तिमुक्तिर्फलप्रदः कोणादित्य इति ख्यातो भक्तिमुक्तिफलप्रदः फलप्रदः। आर्यावर्त भारतवर्ष मध्यरे दक्षिण महोदधि कूଳରେ ओड्र देश वर्तमानर ओडिशा बोली गोटे देश अछि ताहा मोक्षदायक देश अटे। बिरजा मंडलरू महोदधि पर्यंत एही देश रे पुण्यशील गुणवान लोक माने बास करंती। तत्रत्य ब्राह्मण माने वेद विद्या निपुण एवं तपस्या निरत, तेणु समस्तंकर सेमाने दर्शनीय एवं पूजनीय अटंती। सेही देशर ब्राह्मण माने श्राद्ध दान विवाह यज्ञ एवं आचार्य कार्य षट्कर्म अर्थात यजन जाजन अध्ययन अध्यापन दान एवं प्रतिग्रह रे वेद इतिहास पुराण एवं सर्वशास्त्र रे निपुण अटंती एवं सेमाने काहारी प्रति कौनसी मनर हिंसा जात करंती नाही। सेही देशर ब्राह्मण मानक मध्यरु केही अग्निहोत्री, केही स्मार्त, केही दाता एवं सत्यवादी अटंती। एहीपरि ब्राह्मण माने पुण्य एवं यज्ञभूमि उत्कल रे वास करंती। सेही देश रे क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र मान मध्य निज निज कार्य रे निरत एवं सर्वदा धार्मिक प्रवर अटंती। सेही उत्कल देश रे कोणार्क क्षेत्र रे सूर्य कोणादित्य नाम रे प्रसिद्ध। ताहांकु दर्शन करिले मर्त्यवासी माने सर्व पापरु मुक्त हुअन्ति। यह शुणी मुनि माने कहिले, हे ब्राह्मण, सूर्यंकर सेही क्षेत्र विषय रे शुणिबा पई आंभ मानकर कौतूहल जन्म अछि। दया बही आंभ मानकु कहंतु। ब्रह्मा कहिले, दक्षिण समुद्र तीर रे पवित्र मनोहर सर्वगुणान्वित बालुकमय गोटे प्रांतर अछि। तहिरे चंपक, अशोक, बकुल, करवीर, पाटली, पुन्नाग, कर्णिकार, नागेश्वर, जबा, मालती, कुंद, मल्लिका, केतकी, पनस, देवतरु, ताल, आम्र, गुबाक, नारिकेल एवं कपित्थ प्रभृति नानाविध तरु गुल्म एवं लतावेष्टित होई रमणीय होई अछंती। तहि मध्यरे सूर्यंकर गोटे पुण्यमय क्षेत्र अछि जहाकी भोग एवं मोक्षदायक अटे। तहि मध्यरे सहस्र किरणधारी सूर्यदेव विराजमान करंती। तेणु सूर्य कोण आदित्य नाम रे प्रसिद्ध होई अछंती। पवित्र दिन मानकरे इंद्रिय संयम पूर्वर उपवास इत्यादि करी दिवाकर को स्मरण पूर्वक सागर रे नियमित भाव रे स्नान करी देव यक्ष ऋषि मनुष्य पितृ प्रभृति को तर्पण करी शुद्ध वस्त्र परिधान करी आचमन करने पूर्वक महोदधि तीर रे पूर्वमुख होई उपवेशन करी रक्त चंदन द्वारा अष्टदल पद्म लेखी तिल तंडुल जल रक्त चंदन रक्त पुष्प इत्यादि ताम्रपात्र रे रखी ताम्रपात्र अभाव रे पत्र निर्मित पात्र रे मध्य रखी ताहा उपरे खंडिए पत्र घोड़ाई करन्यास एवं अंगन्यास करी निजकु सूर्य रूप रे ध्यान करी आकाशरु सूर्य को आवाहन करी पद्म मध्य स्थापन पूर्वक सूर्य मुद्रा देखाई आसन शुद्धि प्रभृति करी सूर्य को ध्यान करिब। अथ ध्यानम स्थित पद्मोपरिं रविं तेजो बिंब व्यवस्थिताम्
पिङ्गाक्षं द्विभुजं रक्तम् पददण्डारुणनियुतम् सर्वलक्षणं संयुक्तम् सर्वाभरणभूषितम् अभयं वरदं शान्तम् प्रभामण्डलमिश्रितम् अभयं वरदं शान्तम् प्रभामण्डलमिश्रितम् तदन्तं भास्करं ध्यात्वा सान्द्रमिन्दुरसन्निभम् ततस्तत्पात्रमादाय जानुभ्यां धरणीतले कृत्वा शिरसि तत्पात्रमेकचित्तस्तो वाक्यतः त्रिक्षरणे तु मन्त्रेण सूर्यार्घ्यं निवेदयेत् अविखितस्तु मा स्नातः सूर्यार्घ्यं प्रयच्छति श्रद्धाया भावयुक्तेन भक्तिग्राह्यो रविर्जतः अग्नेनैरुत वायव्यं मध्ये पूर्वादिदिक्षु च हृदिरश्च शिखावरम नेत्रमन्त्रं च पूजयेत् दत्त्वा गन्धं च पुष्पं च दीपं नैवेद्यमेव च जप्त्वा स्तुत्वा नमस्कृत्वा मुद्रां बद्ध्वा विसर्जयेत् ये चार्घ्यं च प्रयच्छति सूर्याय नियतेन्द्रियाः ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्या स्त्रियः शूद्रश्च संयुताः भक्तिभावेन सततं विशुद्धेनान्तरात्मना ते भुक्त्वाभिमतन् कामान् प्राप्नुवन्ति परागतिम् त्रैलोक्यदीपकं देवं भास्करं गगनेचरम् ये च स्मरन्ति मनुजास्ते सर्वे सुखभोगिनः यावन्न दीयते चार्घ्यं भास्कराय विधानतः तावन्न पूजयेद् विष्णुं शङ्करं वा सुरेश्वरीं तस्मात् प्रयत्नमास्थाय दद्यादर्घ्यं दिने दिने आदित्याय शुचिर्भूत्वा पुष्पैर्गन्धैर्मनोहरैः एवं ददाति यश्चार्घ्यं सप्तम्यं समाहितः आदित्याय शुचिः स्नातः सुलभे दीप्सितं फलम् रोगाद् विमुच्यते रोगी वितर्थी लभते धनम् विद्यां प्राप्नोति विद्यार्थी सुतार्थी सुतवान् भवेत् यं यं काममभिध्यायन् सूर्यार्घ्यं प्रयच्छति तस्य तस्य फलं सम्यक् प्राप्नोति पुरुषः सुधीः स्नात्वैवं सागरे सम्यक् सूर्यार्घ्यं प्रणम्य च नरो वा यदि वा नारी सर्वकामफलं लभेत् सूर्यगङ्गाम्भसि स्नात्वा कुशेर्वासिच्य मूर्धनि सर्वपापविनिर्मुक्तो नरो जाति त्रिपिष्टपम् ततः सूर्यालयं गच्छेत् पुष्पमादाय भाग्यतः प्रविश्य पूजयेद् भानुं कृत्वा तं च प्रदक्षिणम् तान्त्रिकैर्वैदिकैर्मन्त्रैर्भानोस्तस्य च बुद्धिमान् पूजयेत् परया भक्त्यं कोणार्कं मुनिसत्तमम् पूजयेत् परया भक्त्यं कोणार्कं मुनिसत्तमम् गन्धैः पुष्पैस्तथा धूपैः दीपैः नैवेद्यकैर्वरैः दण्डवत् प्रणिपातैश्च जयशब्दैस्तथा स्तवैः एवं सम्पूज्यतं देवं सहस्रांशो जगद्गुरुम् दशनामस्वमेधानं फलं प्राप्नोति मानवः सर्वपापविनिर्मुक्तः सूर्यलोकं व्रजन्नरः सप्तवारान् सप्तपरान् वंशानुद्धत्य भो दिवजाः विमाने नाकधर्णेन कामगेन सुवर्चसा उदीयमाना गन्धर्वैः सूर्यलोकं व्रजन्ति ते भुक्त्वा तत्र वरान् भोगान् यावदाभूत सम्प्लवम् पुण्यक्षया दिहायातः प्रवरे योगिनं कुले
चतुर्वेदं भवेद विप्रः स्वधर्म निरतः शुचिः योगं विवस्वतः प्राप्य ततो मोक्षमवाप्नुयात् रविवारे च सप्तम्यां शुक्लायामुत्तरायणे पुंनाम्निश्चैव नक्षत्रे गृह्णीयात् सप्तमी वक्त्रम्। तहे उत्तरु पूर्वोक्त अर्घ्यपात्र आनी जानमाड़ी भूमि उपरे उपवेशन करी एही पात्र को मस्तक रे लगाई त्रिअक्षर मंत्र द्वारा सूर्य को अर्घ्य देव। पूर्वादि चारि दिगरे हृदय शिर एवं शिखारे चर्म नेत्र और अस्त्र को गंध चंदन धूप दीप नैवेद्य दे पूजा करी जप एवं स्तुति पूर्वक मुद्रा देखाई नमस्कार करिब। इंद्रिय संयम पूर्वक सूर्य को जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अथवा स्त्री अर्घ्य दियंती से समस्त अभीष्ट फल प्राप्त हुअन्ति एवं जीवनान्ते उत्कृष्ट गति लाभ करन्ति। त्रैलोक्यर प्रकाशक प्रभु गगनचारी सूर्य नारायण को जो माने स्मरण बा पूजा करन्ति से माने सुखभागी हुअन्ति। जो पर्यंत सूर्य को अर्घ्य देई नथिबो से पर्यंत विष्णु शिव बा दुर्गा को पूजा करबा उचित नुहे। तेणु जत्न सहित शुचि होई मनोहर पुष्प एवं गंध द्वारा प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देव। एहीपरि भावरे शास्त्र रे उल्लेख थिबा अनंत काल पर्यंत प्राप्त जो पुण्य कर्म जहाँकि बैशाख शुक्ल तृतीया बा अक्षय तृतीया, कार्तिक शुक्ल नवमी बा अक्षय नवमी, माघ शुक्ल सप्तमी बा अचला सप्तमी एतद व्यतीत सूर्य नारायण को भक्ति पूर्वक जलदान करने द्वारा सही लोक पवित्र होई समस्त ईप्सित फल प्राप्त हुअन्ति। रोगी रोगरु मुक्त हुअन्ति, धनाभिलाषी धन प्राप्ति हुअन्ति, विद्यार्थी विद्या लाभ करन्ति एवं संतानार्थी संतान प्राप्ति हुअन्ति। माघ मासर सप्तमी तिथि रे सूर्यदेव को विभिन्न उपचार रे एहीपरि पूजा करा जाए एवं दैनिक सूर्य को अर्घ्य प्रदान करा जाए। लोक जो जो कामना रे सूर्य को अर्घ्य दिए ताहांकर सही सही कामना पूर्ण हुए। सागर रे स्नान करी सूर्य को अर्घ्य दे नमस्कार कले नर नारी माने निजर अभिष्ट फल प्राप्त हुअन्ति। सूर्य गंगा अर्थात कोणार्क तीर्थ रे स्नान करी उक्त जल को कुश द्वारा मस्तक रे सेचन करिले सर्व पापरु मुक्त होई लोक अंतिम रे स्वर्ग लाभ करन्ति। तेणु सूर्यंकर सही क्षेत्र को जाई हस्तरे पुष्प धरी सूर्य को पूजा एवं प्रदक्षिण करी तांत्रिक व वैदिक मंत्र रे सूर्य को पूजा करने आवश्यक। कोणार्क क्षेत्र रे सूर्य को गंध पुष्प धूपदीप नैवेद्य इत्यादि दे दंडवत प्रणाम करी स्तुति पाठ करने पूर्वक जगत गुरु सहस्र किरणधारी सूर्य को पूजा कले मनुष्य 10 गोटी अश्वमेध यज्ञर फल प्राप्ति हुए एवं समस्त पापरु मुक्त हुई सूर्यलोक को गमन करे। निज ठारू उपर सप्तपुरुष एवं तल सप्तपुरुष उद्धार करी सूर्यंक परी तेजियान रथरे बसी गंधर्व मानक द्वारा स्तुति हुई सूर्यालोक को से गमन करती। सेठारे उत्कृष्ट भोग पाई पुण्य शेषरे योगी मानक वंशरे जन्मग्रहण करती एवं सेठारू चतुर्वेदी हुई सूर्यंकर जोग अभ्यास पूर्वक मोक्ष प्राप्ति हुअन्ति। एठारे उल्लेख योग्य एही जे सूर्यंकर उत्तरायण माघ शुक्ल सप्तमी जदि रविवार रे पड़ी थाए बा रविवार रे होई थाए एवं सही दिन यद्यपि कौनसी पुरुष नक्षत्र भोग करुथाए अर्थात हस्ता नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, श्रावणा नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र एवं पुनर्वसु नक्षत्र इत्यादि यही नक्षत्र मानक मध्यरु जे कौनसी गोटिए नक्षत्र अर्थात यही पुरुष नाम नक्षत्र भोग हेउथाए तेबे सही दिन यही व्रत करिले अशेष पुण्य लाभ हुए। किंतु यही व्रत रे व्रती क्षार भोजन न करी अक्षार भोजन करिबा कर्तव्य यथा गव्यमाश्चि निधान्यम च तिलमुद्गौ च मागधे अक्षारा कथिताश्चैते अन्ये क्षारा प्रकीर्तिता। गव्य दधि दुग्ध घृत प्रभृति आश्विन मासरे पक्व हेबा धान्य तिल मोग एवं पिप्पली एही द्रव्य गुड़िक क्षार बा क्षारयुक्त बा क्षारीय नुहंती। तेणु यहाकु भोजन करिबा व्रती पक्षरे निश्चित भाव उचित अटे। अन्यत्र
କୁହାଯାଇଅଛି ଯେ ଆମତଣ୍ଡୁଳମୁଦ୍ଗାଶ୍ଚ ସଦ୍ୟୋ ଦଧି ଘୃତଂ ପୟଃ ଅକ୍ଷରା କଥିତାଶ୍ଚୈତେ ଅନ୍ୟକ୍ଷରା ପ୍ରକୀର୍ତି ତାହା। ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ମୁଗ, ସଦ୍ୟ ଦଧି, ଘୃତ, ଦୁଗ୍ଧ ଏହିସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଅକ୍ଷାର କୁହାଯାଇଥାଏ। ସୁତରାଂ ଏହିପରି ଖାଦ୍ୟ ବ୍ରତ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସର୍ବଦା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅଟେ। ଓମ୍ ଘୃଣୀସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ। ଓମ୍ ଘୃଣୀସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ। ଓମ୍ ଘୃଣୀସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ। ଆଗ୍ନେୟ ପୁରାଣନ୍ତର୍ଗତ ଆମ ଉତ୍କଳ ରାଜ୍ୟର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ରତ ପୁଷ ରବିବାର ବ୍ରତ କଥା।